یزیدی ذہن کے گستاخ رابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب میرے وفادار رسول بھائی ہی دیں۔ میں نے ویڈیو بنائی تھی، اس میں ایک مفتی کو چیلنج کیا تھا جس کا نام ہے مفتی عبدالواحد قاسمی، ہمارے علاقے میں رہتا ہے وہ۔ تو اس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عطائی علم غیب کا انکار کیا ہے۔ اس کے بعد میں نے اور بھی دیوبندی مولویوں کو چیلنج کیے، سب وہابی دیوبندیوں کو، لیکن مولویوں کو چیلنج کیا تھا، عالموں کو۔ سارے کے سارے جاہل کال کر رہے ہیں یار، ایک بھی عالم دین کال نہیں کر رہا ہے، اور جھوٹ بول بول کے کال کر رہے ہیں۔ کوئی مفتی بتا رہا ہے اپنے آپ کو، کوئی فاضل بتا رہا ہے اپنے آپ کو، کوئی علامہ بتا رہا ہے اپنے آپ کو۔ ابھی پرسوں ترسوں ایک کال آئی، کہاں کا رہنے والا ہے کہاں کا نہیں ہے، تو اس کی کال آئی، وہ کئی دنوں سے مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اب جب میں نے اس کے پاس کال کی تو وہ جوان لڑکیوں کو پڑھا رہا تھا، اللہ اکبر۔ بتائیے، آواز آئی، میں نے محسوس کیا آواز کہ بڑی بڑی لڑکیاں پڑھ رہی تھیں، گھر پہ ٹیوشن ووشن پڑھاتا ہوگا پیسے ویسے کمانے کے لیے۔ تو اس نے کہا میں رک کر کے بات کرتا ہوں، پھر اس کے خیر ٹھہر کر کال آئی، بعد میں بات چیت کی اس نے مجھے، اور اس طریقے سے بات کر رہا تھا کہ مجھے ابھار رہا تھا غصے پر بات کرنے کے لیے، تاکہ میں اس سے غصے میں بات کروں، ابھار رہا تھا وہ مجھے۔ اعلیٰ حضرت کی شان میں توہین کر رہا ہے، بزرگان دین کی شان میں توہین کر رہا ہے، گالی گلوچ، اتنا بڑا گالی باز ہے، اس کا نام ہے عارف الحقانی۔ لیکن اس کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کے دیوبندی مولوی بھی دھتکارتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے، گالی باز انسان ہے یہ۔ اس کے دیوبندی مولوی اور جو انپڑھ دیوبندی ہیں نا، وہ بھی اس کو عارف الحقانی کہتے ہیں، اس خبیث حگیث ذلیل کو، ہے نا، عارف الحقانی کہتے ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے سنی مسلمان بھائی بھی جو ہیں اس کو عارف الحقانی کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ یہ مفتی ہے، یہ جو عارف الحقانی ہے اپنے آپ کو مفتی بتا رہا تھا۔ میں نے اس کو بولا اگر آپ مفتی ہیں تو اپنا سرٹیفکیٹ بھیجیں میرے پاس، تاکہ میں دیکھوں تو صحیح جو مجھ سے بات کر رہا ہے، بحث و مباحثہ کرے گا، مناظرہ کرے گا، وہ کتنے علم والا ہے۔ تو مجھے بولا اس نے کہ ہر وقت ساتھ تھوڑی رہتی ہے سند۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اب اتنی گندی گندی باتیں کر رہا تھا، یہ خدا کی پناہ استغفر اللہ، اور جب میں کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر یہ کہہ رہا کہ دیکھیں سامعین حضرات، اس کی زبان دیکھیں، اس کی زبان دیکھیں کتنی گندی باتیں کر رہا ہے۔ اس سے میں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی چینل وینل چلاتا ہوگا شاید، اس پر کیا ہے کہ ہماری جو الٹی سیدھی ہم اس کو کہتے ہیں وہ اس پر دکھا دیتا ہوگا، اور اپنی آواز کو وہاں سے کاٹ دیتا ہوگا جو اس نے الٹا سیدھا ہمیں بولا ہے نا۔ اس کا ایک چیلا، اس کا دوست ہے ایک، اس کا نام ہے علی اصغر۔ اتنا بڑا حرامی شیطان ہے وہ، اتنا بڑا اجہل الجہلا ہے وہ، ہے نا، شیخ الشیطان شیخ الرذائل ہے وہ، اتنا بڑا خنزیر ہے وہ کہ وہ لوگوں کے پاس کالز کرتا ہے، ابو عبداللہ نام بتاتا ہے اپنا۔ اتنا بڑا شیطان ہے وہ، خبیث مردود، ہے نا، جھوٹ بول بول کر یہ کال کرتے ہیں۔ اور جب عبارتیں پڑھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کی عبارتیں، تو چھوڑ چھوڑ کر کے، کاٹ کاٹ کر کے، جو ان کی مولویوں نے کفر لکھا ہے نا وہ اعلیٰ حضرت پر چیپتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے تمہارے ایسا لکھا ہے ویسا لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی پھر جب اس کو ہم نے کال پہ لیا، ہمارے ایک حضرت ہیں اونلی ازہری نیٹ ورک چینل چلاتے ہیں، انہوں نے جب اس کو کال پر لیا تو انہوں نے بات چیت کی کہ بھائی تمہارا نمبر ملا ہے ہمیں، آپ مفتی ہیں کیا؟ عارف الحقانی بولا، بولے کس نے نمبر دیا آپ کو؟ انہوں نے بتایا، بولے فلاں فلاں نے نمبر دیا ہے، آپ مفتی ہیں کیا؟ اور میں کال پر تھا، شیطان کہہ رہا ہے عارف الحقانی کہ نہیں میں مفتی تو نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا جھوٹا مکار شیطان ہے یہ سبھی مکاری، بہت زیادہ مکاری کرتے ہیں یہ لوگ، ہے نا۔ میرا نمبر، پرسنل نمبر ایسے ایسے جاہلوں کو دیا جو اتنے بڑے گالی باز ہیں، استغفر اللہ خدا کی پناہ، اتنے بدتمیز ہیں وہ لوگ، وہ پتہ نہیں اپنے ماں باپ کو بھی گالیاں دیتے ہوں گے شاید۔ تو میں درخواست کرتا ہوں تمام ہی دیوبندی مفتیوں سے، مولویوں سے، کہ اپنی قوم کو گالی گلوچ نہ سکھا کر کے، صحیح باتیں تو سکھاؤ، چلو دین نہیں ہے تمہارے پاس الگ بات ہے،
لیکن کم از کم اخلاق و آداب تو سکھا دو یار. اور تم ان کو کیوں نمبر دے رہے ہو بھائی میرا؟ میں نے ان جاہلوں کو تھوڑی چیلنج کیا بیچاروں کو، میں نے تم جیسے مولویوں کو چیلنج کیا ہے. تم آؤ نا سامنے، کب بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو؟ اور خاص کر بالخصوص میرا چیلنج جو ہے نا اس کو ہے جس حکیم پور کے مفتی بھگوڑے نے، ہے نا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جاہل بتایا ہے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماں باپ کو کافر و مشرک اس نے کہا ہے، مفتی عبد الواحد قاسمی نے. یہ حالت ان لوگوں کی. کب آ رہے ہیں یہ لوگ؟ میں تو چیلنج کرتا رہوں گا قیامت ان کے اوپر میرا چیلنج جو ہے نا قرض رہے گا. کب آئیں گے یہ لوگ بات کرنے کے لیے؟ میرے مسلمان بھائیو فکر نہ کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کا پردہ فاش اسی طریقے سے ہم لوگ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو 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 ارے جی دیوبندی مفتی عارف الحقانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ آپ کون؟ ارے آپ مفتی ہیں؟ آپ ہیں کون؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ مفتی ہیں؟ ارے آپ کون ہیں یہ تو بتائیں. میں کہہ رہا ہوں کسی نے آپ کا نمبر دیا ہے کہ آپ مفتی ہیں شاید. کس نے نمبر دیا؟ یہ نمبر دیا آپ کے اصغر صاحب ممبئی کے کہ ہمارے مفتی سے بات کر لو. آپ مفتی ہیں؟ کون اصغر؟ دیوبندی اصغر ہے ممبئی کے. میں نہیں جانتا. تو آپ مفتی ہیں یہ بتائیے. ارے بھائی جس نے آپ کو نمبر دیا ہے، ارے اظہر نہ نام میری ممبئی، کبھی بات ہوئی ہے. سنیے ممبئی کے اظہر صاحب ہیں، سنیے، اظہر صاحب ہیں ممبئی کے. آپ کی بات پر میں کیسے یقین کر لوں؟ تو آپ بتائیے نا آپ مفتی ہیں یعنی ہاں یا نہ تو بتائیے. بھائی جس تعلق سے آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، ارے میں اسی تعلق سے پوچھ رہا ہوں، پھر آپ کی بات میں مفتی آپ سے کراؤں گا نا. پوچھ رہا ہوں کہ جس نے آپ کو نمبر دیا ہے تو آپ، میں نے تو ان سے کبھی بات نہیں کی. میں نہ وہی میں تو ان کو پوچھ رہا جانتا ہوں. ہوں. اے محترم میں آپ سے پیار سے پوچھ رہا ہوں، بڑے اچھے سے پوچھ رہا ہوں. اگر آپ مفتی ہیں پیار تو سے بتا آپ، دیجئے، نہیں ہے تو میں فون رکھ دوں گا. نہیں مفتی تو نہیں ہوں. تو پھر تو نے حرام خور افتخار اظہر صاحب کو یہ کیوں بولا تو مفتی ہے؟ کس کو میں نے بولا؟ افتخار اظہر صاحب کو. جی افتخار رضا صاحب قبلہ کو تو نے کیسے بولا کہ تم مفتی ہے؟ حرام خور، جھوٹ بولتے ہو تم لوگ. کب میں بولا؟ جوتے سے ماروں گا سالے باٹا کے. کل پرسوں اس کی کال آئی تھی کمینہ کہیں کا مردو شیطان. سے کال کر رہا تھا. تو نے بولا، کس کو بولا؟ تو نے بولا نے کہ مفتی میں بولا اس کو؟ تو تحریر شائع کر، میں مفتی ہوں، میں مناظرہ کروں گا. تو مناظرہ کرنے کے لائق ہے بے؟ میں مفتی بولا اس کو؟ کبھی چہرہ دیکھا شکل آئینے میں دیکھیے تو نے؟ مفتی بولا؟ خدا کی قسم کھا کے بول تو نے نہیں بولا. تو خدا کی قسم کھا کے بول، دی تھی افتخار. تو خدا کی قسم کھا کے بول تو نے یہ نہیں بولا کہ تو مفتی نہیں ہے. تو یہ بول خالی کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں بولا کہ میں مفتی ہوں. بول ذرا قسم کھا کے بول. افتخار اللہ کی قسم کھا کر بولے کہ میں نے بولا کہ ہاں میں مفتی ہاں ہوں. چلیے حضرت بولیے ذرا. میں اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں حضرت، اس نے مجھ کو بولا کہ میں مفتی بات کر رہا ہوں، آپ سے مناظرہ کروں گا میں. چل اب تو قسم کھا لے. ہاں مفتی. ابے سور کی اولاد، خنزیر کے بچے، مردو شیطان، جھوٹے مکار. ابھی اسی پر سالے کتنا گرو گے تم؟ تیرے مفتی بھاگے پھر رہے ہیں، ہمارے عالم سے تیرے مفتی بھاگے پھر رہے ہیں. تم سالے حوارث خوارج مناظرہ کرو گے؟ ابے بی تجارتین اور بی ہجارتین چھوڑ دے. تیرا مفتی تو ارے تم کو کھا کے فون کاٹ کے بھاگ گیا تھا. کلین اسباہ پڑھا رہے تم کو کھا گیا. خبیث اپنے مفتی کی تو خبر لے لے. کلین اسباہ پڑھا رہے تم کو کھا گیا. دھلائی کروں گا مردود. چل تو دھلائی کر. رک جا رک جا رک جا. حضرت حضرت رکو حضرت رکو. میں یہ کہہ رہا ہوں، ہاں تو نے یہ بولا کہ میں مفتی بول رہا ہوں. چل 2 منٹ بات کر. ہاں چل 2 منٹ بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتا اللہ اکبر کہ افتخار رضا صاحب نے تیرے مفتی کو چیلنج کیا مناظرہ کرنے کا، سامنے بیٹھنے کا. تیرا مفتی فون نہیں اٹھا رہا ہے. کیا نام ہے حضرت؟ رک جا کیا نام ہے حضرت اس کا؟ اس کا نام ہے مفتی عبد الواحد قاسمی. ہاں چلو مفتی عبد الواحد قاسمی کو پوری دیوبندیت سن تو لے. پوری دیوبندیت، ہاں چل پوری دیوبندیت کو چیلنج کیا. ویڈیو دیکھا. سن تو لے. 2 منٹ مجھے بولنے دو دے. تو نے 2 منٹ کے لیے قید لگائی ہے نا. 2 منٹ بولنے دے. تو کون ہے؟ میں وہ ہوں جس کے نام سے پوری وہابیت دیوبندیت کانپتی ہے. جمشید علی قادری بات کر رہا ہوں. ابھی تو کہہ رہا تھا بھی تجارتین پڑھ رہا تھا.
बितिजारतिन को बितिजारतिन पढ़ता है। हाँ हाँ सुन तो ले, क्या औकात मैं है? 2-2 मिनट की बात बोली ना तूने, या तू बोलेगा पहले या मैं बोलूं? तूने 2-2 मिनट की 2-2 मिनट की कैद लगाई ना, तू कहता है ना, तूने 2-2 मिनट की कैद 2-2 लगाई ना। मिनट की कैद तो मुझे बोलने देना। हाँ तो तू बोल, मुझे बोलने चल दे। मैं खामोश हूँ, बोल। हाँ हाँ, इस इफ्तिखार रजा खन्नासी ने पहले तमीज से बात मुझे ले, ऐसी तमीज से गंदी- काम ले, तमीज से खामोश बोल, रहे। तमीज से बोल। अरे मरदूद, इतनी गालियां तूने दी हैं अभी इसी रिकॉर्डिंग में। हाँ मैं और तो तू दूंगा कहता ना, तू तमीज गाली से? के लायक ही है। इतना अच्छा, हाँ सर्टिफिकेट मैं मिला हुआ है गाली के मुझे। लायक हूँ? हाँ झूठों पर अल्लाह की लानत है ना। मैं बता रहा हूँ इसकी बात कल कल कॉल सुनो 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 सुनो, ये देख, ये तेरी फतावा कासमी, सुन 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 सुन, तेरी फतावा कासमी में लिखा है कि जो शख्स आलिम ना हो और वो आलिम अपने आप को आलिम कहता है, उसका देवबंदियत से कोई लेना देना नहीं, ऐसा शख्स देवबंद का अहल नहीं है। तेरी फतावा कासमी में लिखा है, माशाअल्लाह। फतावा कासमी में लिखा है कि जो शख्स अपने आप को आलिम की सनद देता है, कहता है मैं आलिम हूँ, और वो आलिम नहीं है, झूठ बोलता है, तो ऐसे शख्स से देवबंदियत का कोई लेना देना नहीं है। तू तो अपने खारिज हो गया देवबंदियत से, अपने फतवे से। कहाँ खाली, मैं तो आलिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तू मुफ्ती है तू? चल तू आलिम की सनद भेज, आलिम हूँ, आलिम की सनद भेज, मैं अपनी तो आलिम हूँ। सनद भेज आलिम की, अपना सर्टिफिकेट भेज। तेरे बाप का नौकर हूँ। हाँ तो मैं तेरे बाप का नौकर हूँ, तेरी बहन का यार हूँ मैं। क्या जरूरत है? हाँ? तेरी बहन का यार हूँ मैं। अगर इफ्तिखार मुझसे मुनाजरा करना चलो चाहता ठीक तो है, मैं आमने सामने मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। चलो तुम तैयार हो मुनाजरे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट रुको रुको रुको, हजरत रुको, हजरत रुको, पहले इस रिकॉर्डिंग में ये बोल, जो तेरा मुफ्ती है जिसको हजरत ने चैलेंज किया, वो नाअहल है मुनाजरे का, फिर तेरे से बात करते हैं। पूरी देवबंदियत हाँ पूरी देवबंदियत में वीडियो मौजूद है। सुन सुन सुन, का इसने नाम लिया, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, चल 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 मैं चल पूरी देवबंदियत का नाम लेते हैं, चल चल पूरी देवबंदियत का नाम लेते हैं। तो एक काम कर, तू दिल्ली आ जा, फिर अपनी सनद दिखा दे और दिल्ली आ जा। जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। कब आएगा? तारीख बता, तारीख तारीख तारीख। मैं इफ्तिखार रजा साहब को अपने पास बुला रहा हूँ, तू तारीख बता दे कब आएगा? बता रहा हूँ, वक्त कब आएगा? बता रहा हूँ, बता जल्दी बता। बता रहा हूँ, वक्त भी बता रहा चल हूँ, बता, सब कुछ बता रहा हूँ। बता। सबसे पहले इस मरदूद मलऊन ये जो रजा खन्नासी इफ्तिखार है, सबसे पहले अपने मशहूर मारूफ इदारे के लेटर पेड पर ये लिख कर इरसाल करे, चैलेंज करे कि मैं पूरी देवबंदियत को आमने सामने मुनाजरे की दावत देता हूँ। ठीक है, चलो ठीक है। और मेरी फतह शिकस्त जो है, पूरी जो है रजा खन्नासियत की फतह शिकस्त होगी। ठीक है, ये जो है चैलेंज अपने मशहूर मारूफ इदारे के लेटर पेड पर लिख कर जो है दस्तखत। नाम किसका लिखे? नाम किसका लिखे? है नाम किसका लिखे? मुनाजरा कौन करेगा? तू करेगा? मैं करूंगा। हाँ तो तेरे अब सुन ले, अब सुन ले, अब सुन ले, मुनाजरे के जो उसूल है वो अब सुन तो ले, सुन तो ले, अब तेरी मेरी भी तो सुन ले, मुकम्मल हो जाने दे। हाँ मुकम्मल कर ले, मुकम्मल कर ले। हाँ, जिस तारीख और जिस दिन जिस वक्त ये इफ्तिखार अपने मशहूर मारूफ इदारे के लेटर पेड पर ये लिख कर दे देगा मुझे, उसी दिन इंशाअल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा। चलो ठीक है, आपकी बात हो गई। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की कि आप मुनाजरे के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले जनाबे मन, हाँ सबसे पहले जनाबे मन, मुनाजरे में बैठने के लायक आप हैं या नहीं, आप अपना सर्टिफिकेट रिसाल करें। है क्या कर रहा है? ने जब वीडियो में तो तुझे थोड़ी चैलेंज किया, तेरे आलिमों को चैलेंज किया, आलिमों को, आलिमों को, आलिमों को, आलिमों को। तो सर्टिफिकेट भेज, सनद भेज दे, सनद के आधार पर लेटर पैड मैं तुझे 1 दिन में रिसाल कर दूंगा, 1 दिन में। ये कोई नहीं, यही तो उसूल है मुनाजरे के। जो मुनाजिर होता है वो पहले अपनी सनद भेजता है। सुन में जाहिल, तो जाहिल, जाहिल सुन, ठीक है, अब सुनो, मैं जाहिल सुन, देख तेरी किताब है कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ, तेरा अबू बकर गाजीपुरी लिखता है। सुन, अब मुझे बोलने नहीं दे रहा है, सुनता नहीं है। तेरी बात को पूरा सुनाना मैंने, मैं तुझे बता रहा हूँ तेरा पूरी बात। हाँ चल बता बता। मुनाजरे का उसूल ये है कि तफसीर नईमी के अंदर तेरा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती बदायूनी लिखता है, मरदूद कहता है कि एक आलिम गैर आलिम से भी मुनाजरा कर सकता है। तो अच्छा सुन 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 सुन, अब सुन, अब सुन, कहता है कि आलिम होने की जो है सनद दे। अब सुन सुन सुन, वो हवाला भेज दे जरा, तफसीर नईमी का हवाला भेज दे।
बिल्कुल भेजूंगा, हाँ भेज बिल्कुल भेजूंगा। भेज भेज। क्यों घबरा रहा वहां है? पे काफिर से क्यों मुराद है घबरा रहा जाहिल के बच्चे, मुसलमान नहीं है। काफिर क्यों मुराद है कि घबरा रहा एक जाहिल तेरे काफिर यहाँ से एक जब आलिम ये मुनाजरा कर उसूल सकता है, मौजूद जाहिल के बच्चे अच्छा, गधे। मुराद तू बता, कुरान की तफसीर में मुराद वो तू मुझे लिखी हुई है वहां बताएगा पे। जिसको जो है अब क्या खामोश हो, बोलते हैं, खामोश हो, खामोश हो, नहीं पता है, वो मुझे खामोश मुराद हो, बताएगा। मुझे बोलने दे। मरदूद तेरी कहीं का। बात पूरी सबसे सुनी ना पहली मैंने, बात है, जब तेरी बात यहाँ मुझे पता है तू कहाँ बोलने नहीं कहाँ देगा, बोला इसीलिए मेरे हम बीच कहते हैं में बोला? वहाबियत देवबंदियत में कहाँ किसी बोल माँ ने रहा? हलाली बच्चा कहाँ पैदा बोल नहीं किया रहा? बेटा। तू तो तू बोलने नहीं देगा, तू बोलने ही नहीं देगा, तू बोलने ही नहीं देगा। तफसीर नईमी का स्कैन भेज दे, वहां से मुराद काफिर है, काफिर 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 जाहिल, काफिर जाहिल मुराद है, काफिर जाहिल मुराद है, काफिर जाहिल मुराद है, काफिर जाहिल मुराद है। को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता तो मैं कह तो रहा हूँ, तू काफिर बोल दे अपने आप को, तू अपने आप को काफिर बोल दे, हम फिर मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। तू एक बार अपने आप को काफिर मान ले। की धज्जियां उड़ा रहा है और तूने तफसीर नईमी पेश की है, बोलने तो दे, बोलने तो दे। तूने तफसीर नईमी पेश की है, तुझे मेरे बीच में तो तूने तफसीर नईमी, तूने तफसीर नईमी, खामोश हो जा। तूने तफसीर नईमी पेश की है, वहां से मुराद काफिर है। तू अपने आप को काफिर मान ले, हम भेज देते तुझे तहरीर। मैं चल पहले बोल ले, तू बोल ले। चैलेंज करता हूँ। हाँ बोल ले, बोल ले, बोल ले, बोल ले। तमाम कटमुल्लाओं को ये तिजारतिन हो या ये जो क्या बोलते हैं इफ्तिखार रजा खन्नासी गालिबाज हो, इसको बोलने का ढंग और शऊर तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। और चला ये पूरी देवबंदियत को चैलेंज करने। मैंने उस दिन भी इस मरदूद को यही कहा था कि ये अपने मशहूर मारूफ इदारे के लेटर पैड पर ये लिख कर दे दे कि ये मुनाजरा करना चाहता है, इसकी फतह शिकस्त जो है मसले बोलने तो बोलने तो बोलने नहीं बोलने तो उसको बोलने तो। हाँ बोलो बोलो। तो जिस दिन ये जो हराम खोर जो है क्या बोलते हैं अपनी लेटर पैड जारी कर देगा, उसी दिन इसके सामने आरिफुल हक्कानी हाजिर हो चलो अब खामोश हो जा, मुझे बोलने दो, अब मुझे बोलने दो। किस दिन ये लेटर पैड जारी आप बोलने दे, मैं बोलूं, अब बोलूं मैं? जैसे मैंने खामोशी से सुना वो तुम भी खामोशी से सुनना। देख लंबी गुफ्तगू नहीं करनी। नहीं तेरी लंबी सुनी ना मैंने, तेरी लंबी गुफ्तगू मैंने सुनी ना, अब मेरी भी तो सुन ले। यहाँ मेरी भी तो सुन ले, मेरी भी तो सुन ले, मेरी भी सुन ले, मेरी भी सुन ले, अगर तुझे मुनाजरा करना मेरी भी सुन ले, तो बोल दे, मेरी भी सुन ले। तूने कहा कि जिस दिन हजरत लेटर पैड जारी कर देंगे मैं आ जाऊंगा। अबे तू खामोश हो, खामोश हो। तूने हवाला दिया तफसीर नईमी का, तूने हवाला दिया तफसीर नईमी का। अरे ना अहल बोलने तो दे, बोलने तो दे, बोलने तो दे, जाहिलों की पहचान बोलने तो दे। दे रहा है। तूने हवाला दिया, तूने हवाला दिया तफसीर नईमी का, और वहां पर तफसीर नईमी में जो जाहिल मुराद है वो है काफिर। अगर तू अपने आप को काफिर मानता है तो हम तुझे लेटर पैड भेज देंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, अब चुप चुप चुप, खामोश खामोश खामोश, मुझे बोलने दे। लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, खामोश खामोश। अब दूसरी चीज, ये तेरी किताब है, अब ये तेरी किताब है। अरे बोलने तो दे, बोलने तो दे। ये तेरी किताब है कुछ वक्त गैर मुकल्लिदीन के साथ, इसमें तेरा अबू बकर गाजीपुरी लिखता है हर मजहब का जो माखज होता है उसके अकाबिर का कलम माखज होता है, ना कि गैर अकाबिर का। तो तू जैसे झंडू को जानता कौन है बे? तेरा अकाबिर तो खुद लिखता है कि उसको माखज माना जाएगा जो देवबंद का अकाबिर है। तू जाहिल कौन है? तू कौन है जाहिल? हाँ, हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलम, कलम माखज होता है, कलम कलम। अब दिखा दिया तो, दिखा दिया तो चल बात है, बात मान ले, चल चल बात मान ले। उसकी बात माखज है, उसकी बात माखज है, उसकी बात माखज है, उसकी बात माखज है, उसकी बात माखज है। चल बात मान ले, चल। बात लिखा हुआ है, हाँ, बात लिखा हुआ क्या लिखा है, क्या लिखा है? बात लिखा है साले कलम लिखा हुआ है, कलम। इतना जुतियाऊंगा ना, इतना जुतियाऊंगा। चल अगर कलम लिखा हो तो तुझ पर अल्लाह की लानत, और अगर कलम नहीं लिखा मुझ पर अल्लाह की लानत। आमन बोल, आमीन बोल। कलम हाँ कलम, कलाम 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 कलाम। तो साले बात ही तो बोला मैंने, कलाम और बात तो अलग है क्या? कलाम और बात अलग है क्या? कलम बोला, अच्छा कलम कलम बात और सुन, कलम बात और कलाम तीनों एक ही चीज है ना साले। मारो मुंह पे खींच के, जो उसके मुंह से निकलेगा वही तो लिखेगा ना वो। गधा कहीं का, घोड़ा घोड़ा। कलम और बात उसका कलम, जो कलम चलेगा वही तो जुबान पर आएगा ना, गधे के बच्चे, उल्लू के पट्टे। जो मुंह से बोलेगा वही कलम लिखेगा ना उसका। कलम कलाम और बात तीनों चीज एक है ना जाहिल आलिम की। जाहिल के बच्चा तुझे तो नहीं पता। चल अब बता, तेरा अबू, तेरा अबू बकर गाजीपुर। सुन सुन सुन, कलाम और बात में क्या फर्क है?
कलाम और बात में क्या फर्क है? अबे क्या लिखा हुआ है? अबे गधे के बच्चे, कलाम लिखा है, कलाम, इबारत तो ढंग से कलाम नहीं लिखा है, कलाम, कलाम। सुन अब, बात क्यों कहा? हाँ अब तो ये बता, तेरा अबू बकर गाजीपुरी कहता है कि हर मजहब का, तेरा अबू बकर गाजीपुरी क्या लिखा है, हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम माखज होता है, ना कि गैरे का अकाबिर का। तो तुझे मानता कौन है? तू है कौन में झंडू चमनप्रास तू अपने मसलक में? है? तू अपना सनद दिखा, हम यहाँ से तहरीर भेजा, तू दिखा कुछ नहीं, तू दिखा कुछ नहीं, तू ये बोल कि तेरी औकात नहीं है सिर्फ झूठ बोलने की, गाली बकने की, तुम्हारी औकात है बस। किस मुंह से जो है क्या बोलते हैं पूरी देवबंदियत को चैलेंज इसलिए किया, सुन मैं बता रहा हूँ, इसलिए किया क्योंकि हमें ये देखना है कि तेरी देवबंदियत में, सुनना, तेरी देवबंदियत में झंडू चमनप्रास कितने आलिम हैं जो अपनी माँ की असल पैदा हुए हैं, जो हरामी के बच्चे नहीं है, वो सामने तो आए पहले। बेशक अगर हरामी के बच्चे होंगे तो चैलेंज को सुन करके चुपचाप बैठ जाएंगे। देख, एक चीज तो साबित हो गई कि तेरा खून खौल गया। हाँ, सुन तो ले, अरे सुन तो, हाँ सुन तो ले, एक चीज तो ये साबित हो गई, सुन अब मैं फाइनल कर रहा हूँ, एक चीज साबित हो गई आरिफुल हक्कानी के पूरे देवबंदियत के आलिम खामोश बैठे हैं, ये साबित हो गया कि तू हलाली की औलाद है, तेरे सारे आलिम हरामी की औलाद है जो बोल नहीं रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, इसका मतलब ये कहाँ होता है? यही तो होता है, हरामी तो चुप होता है, जो हरामी होता है वो खामोश होता है। देख तेरे मुंह में बावासीर हो गया। आलिम जो है, जो आलिम होता है, हाँ जो सारे आलिम है वो नाजायज औलाद है, इसीलिए तो खामोश है कि हमारा भेद खुल जाएगा, आप चुपचाप बैठे रहो। तू हलाली की औलाद है, तेरा बाप एक है तो तू आ गया। बेशक तेरा बाप एक है इसलिए तू आ गया, लेकिन तेरे जितने आलिम सब हरामी है, वो डर रहे हैं हमारा भेद खुल जाएगा। तेरे कहने से कुछ नहीं होता है, आलिम को लेके अपने आलिम को लेके आ। देवबंद भूत बंद सुन, भूत बंद सुन, उलमा की बात कर ले या तू अपनी बात कर ले, या तो तू अपनी बात कर ले या उलमा की बात कर ले। तिजारतिन को आगे क्यों किया है? हाँ इसलिए आगे किया है, सुन, इसीलिए आगे किया है कि मुझे पूरी तहकीक है कि तुम हरामी हो। अबे तहकीक तुझे कुछ बिल्कुल तहकीक है, क्योंकि मैं तेरे बाप अली असगर तेरे नाजायज बाप के पास गया, वो भाग गया। तेरे पास लखनऊ गया, तू लखनऊ से भाग गया। तेरा रसादी फसादी कवाबी जुआरी शराबी बलात्कारी भाग गया मुंबई से, वहाँ लखनऊ से। सुन ले यार, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है, मुनाजरा करेगा मुनाजरा। तूने अपने आप को मुफ्ती क्यों कहा ये बता बस। इसकी कल कॉल आई ना मेरे पास हजरत, अल्लाह की कसम खा के बोल, तूने अपने आप को मुफ्ती नहीं बोला। गाली गलौज की हजरत, इसने ना, मैं ये कह रहा हूँ कि तू मुफ्ती है, और फिर तू मुफ्ती है, ए मुफ्ती, बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हाँ इस मरदूद तो हम भी तैयार है, हम भी तैयार है, अपना सर्टिफिकेट भेज दे। जब इसने पूरी देवबंदियत का नाम सर्टिफिकेट भेज दे, इससे कहता हूँ कि मैं देवबंदियत से मुराद, तैयार हूँ, और ये बेवकूफ अपने मशहूर और मारूफ इदारे के लेटर पैड पर ये लिख कर हमारे पर्सनल पर इरसाल करे। अच्छा ठीक है, आरिफुल हक्कानी मुनाजरा करना चाहता है। अच्छा आरिफुल हक्कानी, शिकस्त जो है वो मसले के रजा खन्नासियत। अच्छा आरिफुल हक्कानी, अगर हमने रिसाल कर दिया और तू रिसाल ना कर पाया तो तू हरामी। क्या? अगर हमने तहरीर शाया कर दी और तू ना कर पाया तो तू हरामी। पहले यहाँ पर हामी भर। मैं तो जारी ही करूंगा। जल्दी बता, तू करेगा? अल्लाह की कसम खा के बोल, तू जारी करेगा? ना जारी किया तो तू हरामी। तू अल्लाह की कसम खाकर बोल। मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, सुन, मैं अल्लाह की कसम खा के बोलता हूँ, मैं जारी कर रहा हूँ। अगर मैं ना करूँ तो मैं हरामी, और मेरे जारी करने के बाद तू ना करेगा तो तू हरामी। नहीं, पहले हामी भर, पहले हामी भर। तू जैसे मुझसे हामी करवाया, वैसे तू हामी भर। सामीन को क्या कर रहा है? अपनी अम्मी के यारों को क्यों बुला रहा है? पहले बता। इनकी जुबान देखिए। अबे तो अपनी अम्मी के यारों को बाद में बुलाइयो। जुबान कर रहा है, गंदी गालियां दी, और इसी तरीके से वो सारी रिकॉर्डिंग लगाऊंगा, वो सारी गालियां लगाऊंगा। नंबर 545। देखिए सामी निगराम, इसने मुझसे हामी भरवा लिया, अल्लाह की कसम खिलवा लिया, लेकिन खुद नहीं खा रहा। इसको पता है कि इसके नाअहल जो देवबंदी लानती जुआरी शराबी कबाबी है ना, वो इस खबीस को कभी तहरीर दे ही नहीं सकते, इसलिए तो कसम नहीं खा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि इसीलिए कसम नहीं खा
बताना, जो है क्या लेटर पैड जारी करेगा? तू बताना, तू लेटर पैड जारी कराने के बाद तू दे पाएगा? तो भर पहले, तू पहले हामी भर। तू तो इतना बड़ा, अबे झूठे कहीं के। तूने जो अल्लाह की कसम खाई थी, हाँ। एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा तू अल्लाह की कसम तू दिखा दे, भागा है मुझसे। दिखा दे मैं भागा हूँ, कई मर्तबा। तू दिखा दे मैं भागा हूँ, हमारे पास आज भी रिकॉर्डिंग मौजूद तू है। दिखा दे मैं भागा हूँ, तू दिखा दे हाँ इल्म की तारीफ, हाँ। मैंने छोटा कहा है, कि अरे एक नंबर का हराम खोर है ये मर्दू शैतान, इसको इल्म की तारीफ नहीं मालूम है, ये इल्म की तारीफ मेरे घर से कर रहा है, ये इल्म की तारीफ। हजरत मैंने ये चैलेंज किया था उलमाए देवबंद से, इल्म की तारीफ दिखा दे, तो ये मेरे घर से दिखा रहा था, ये मेरे घर से दिखा रहा था, इतना बड़ा नावल है ये। मेरा मैंने कहा खुदा की कसम अगर तूने उलमाए देवबंद से इल्म की तारीफ दिखा दी मैं शिकस्त लिख के दूंगा, ये मेरे घर से दिखा रहा था। हमने बड़े असलाफ से, बड़े असलाफ से जो है। अबे चल झूठा साला मक्कार, चल बता तहरीर शाया करेगा, मेरे तहरीर शाया करने के बाद तहरीर शाया करेगा, हाँ या ना बता, मैं फोन काट रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल तहरीर अल्लाह की कसम खा के बोल, करूंगा, लेकिन सबसे पहले अल्लाह की कसम खा के बोल, अल्लाह की कसम खा के बोल, लेटर पैड जारी कर रहा है। पहले अल्लाह की कसम खा के बोल कि तुम्हारी तहरीर के बाद, लेटर पैड कब जारी करेगा? पहले अल्लाह की कसम खा के बोल, वक्त बता, फिर मैं बताता हूँ। पहले अल्लाह की कसम खा के बोल, वक्त बता, पहले अल्लाह की कसम खा के बोल, मेरी तहरीर के बाद तू तहरीर शाया करेगा। ये तहरीर के बाद मैं तो आज ही कर दूंगा, वक्त ये भाग जाएगा कहीं को। मैं तो आज ही करने को आज ही कर दूंगा, सुनो आज ही करने को आज ही कर दूंगा। तू बता कि अल्लाह की कसम, आज करेगा, तू पहले बता, तू पहले बता, मेरे तहरीर शाया करने के बाद अल्लाह की कसम तू तहरीर ला के देगा कि तेरी शिकस्त पूरे देवबंदियत की शिकस्त है? आज करेगा, पहले कसम खा, हराम खोर मरदूद शैतान खबीस लानती, तेरी कसम का एतबार क्या है? देवबंद की कसम सुन ले, देख देख देख, सुन सुन सुन, फतावा रशीदिया में लिखता है तहते कुदरत किस्बे बारी तालान, यानी अल्लाह भी झूठ बोल सकता है, तो तुम अल्लाह को झूठा बना सकते हो, तो तेरी क्या औकात है बे? लानती इंसान मरदूद शैतान, कहते कुदरत किस्बे बारी ताला, यानी अल्लाह की कुदरत में झूठ बोलना शामिल है तुम्हारे नजदीक, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो साले एक नंबर के झूठे मक्कार कज़्ज़ाब हो। जो लवादत करता है, लवादत जो है हाँ, करता कौन सी किताब, कौन सी किताब, कौन सी किताब? फतावा रिज़विया जिल्द 15 सफ़हा नंबर। अबे साले वो तुम्हारे घर का फतवा है जाहिल के बच्चे। मेरे घर का वो हाँ, वो तेरे घर की इबारत है, वो तेरे घर की इबारत है, वो तेरे घर की इबारत है वो। हाँ साबित करूँ, साबित करूँ, हमारी किताब में साबित करूँ? तज़किरतुल रशीद, तज़किरतुल रशीद। हाँ चल इबारत पर इबारत, और इबारत तो तूने पढ़ दी। लबारत कर सकता है अल्लाह, तूने पढ़ दी इबारत। तूने तो पढ़ दी, अल्लाह ताला लबारत कर सकता है। जो आला हजरत ने फतवा हाँ सुन मैं जाहिल, हमारे घर में ऐसी कोई इबारत मौजूद ही नहीं। तेरे घर में ऐसी इबारत मौजूद नहीं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है? ना हमारा, अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है, अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है। अबे वहाँ खुल्फे वईद है, खुल्फे वईद तुम्हारे घर से यही मसला साबित। अबे चूतिया झंडू, अल्लाह झूठ बोल सकता है? ये साबित करूंगा, अल्लाह झूठ बोल सकता है? कादिर है, अल्लाह ताला झूठ हाँ, तो जीना पे, तो जीना भी कर सकता है फिर? तेरा अल्लाह जो है जिसको तुम अल्लाह मानते हो वो जीना भी कर सकता है फिर? खबीस कहीं का मधु। देखिए सामने ग्राम, इसने खुद कबूल कर लिया कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, इसने खुद कबूल कर लिया। अब ये बताओ कि ये अल्लाह झूठ बोल सकता है इसके नजदीक, तो इसकी क्या औकात है? अब देख कहाँ भागा, देख कहाँ भागा, कहाँ भागा, देख कहाँ भागा, देख रशीद उसने हवाला दिया तेरे हाँ 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 मुजद्दिद ने हवाला, हाँ 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 हाँ, जो हवाला तेरे मुजद्दिद ने दिया है वो मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह। देख असलियत मुंह से उगल दिया, असलियत मुंह से उगल दिया, असलियत मुंह से उगल दिया। उसने तो झूठ बोला है, उसने तो झूठ बोला है। अबे मरदूद शैतान, मरदूद शैतान कितना झूठ बोलेगा। अभी कह रहा था आला हजरत ने लिखा है, अब कह रहा है कि शाह इस्माइल देहलवी की इबारत है वो। कुछ नहीं है, मैं तो इल्जाम कह रहा हूँ। ये होश में नहीं है, ये शराब पी के आया चरसी, ये चरस पी के आया, ये चरस पी के आया, चरस पी के, ये चरस पी के आया है। अहमद रजा ने इल्जाम लगाया तो अच्छा वो कौन सी किताब, कौन सी किताब का हवाला दिया शाह इस्माइल देहलवी की? तमहीद ईमान, तमहीद ईमान की पहचान। हाँ सुन सुन सुन, 32 पर उसने मौलाना शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह लानतुल्लाह अलैह, सुअर है वो, खिंजीर है, बदतरीन है। इमाम ताइफा इस्माइल देहलवी की मैं तकफीर नहीं करता। अच्छा अबे जाहिल के बच्चे सुन, हाँ आगे पढ़, आगे पढ़, आगे पढ़, आगे पढ़, आगे पढ़, आगे पढ़,
आगे पढ़ 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 आगे नहीं पढ़ेगा मरदूद शैतान इस्माइल दहलवी लानतुल्लाह अलैह लानती है लानती लानती कॉल की मेरे पास हजरत सुनो सुनो हजरत हजरत आला हजरत ने कहा कि मैं अभी शाह इस्माइल देलवी की भी तकफीर नहीं करता क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले की तकफीर नहीं करते। हाँ अगर उसका कोई कुफ्र आफताब की रोशनी के बराबर हो जाए तो उसकी तकफीर की जाएगी। पूरी इबारत नहीं पढ़ रहा सूअर का बच्चा। उसके बाद अल कौकत शाहबिया में आला हजरत ने उसका रद्द किया। अबे लानती इंसान सुन 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 अबे कफ्फे लिसान ने क्या सुन आला हजरत ने क्या लिखा। वो जो वहाबिया ने दिया लकब जिसको शहीद का वो शहीद लैला नजर था वो शहीद है तैगे खयार है। आगे लिखता है ये दीन की तकलीद उसके घर के सिराते मुस्तकीम समेशर। आला हजरत ने लिखा कि उसे वहाबिया ने दिया लकब शहीद का वो शहीद लैला नजद था। लैला नजद था जहन्नमी था काफिर था हराम खोर था। अबे तू ये बता तू मुफ्ती है या नहीं बस इतना बता। तू कहाँ से कहाँ भाग रहा है देखो कहाँ से कहाँ भाग गया। देखो ये कहाँ से कहाँ भाग गया ये हराम खोर। देखो ये मुनाजरा करेगा ये मुजरा कर रहा है यहाँ पर ये मुजरा कर रहा है। कल इसने मुझे ये ऐसी बकबक करेगा ऐसी बकबक करेगा ये ऐसी बकबक करेगा। हिंदिया में ये ऐसा मरदूद है जमशेद भाई इसका फोन काटो। ये पागल ऐसी बड़बड़ाता है जाहिल का बच्चा इसकी औकात नहीं है बात करने की। ये ऐसी करता फसूल बसो तो करता रहेगा ये। तू अपनी अगर तू अपनी माँ की हलाली औलाद है तो आला हजरत का फतवा दिखा दे कि आला हजरत ने उसको मुसलमान लिखा है। जो तूने इबारत पढ़ी उसकी इबारत के आगे आला हजरत ने लिखा है कि अगर उसका कुफ्र सुन 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 अगर उसका कुफ्र आफताब की रोशनी के बराबर हो गया तो फिर उसकी तकफीर की जाएगी और उसका कुफ्र फैल गया। और आला हजरत ने लिखा कि उसे वहाबिया ने दिया लकब शहीद का वो शहीद लैला नजद था वो बागे तैगे खयार है। तेरे बाप को शाह इस्माइल देलवी को लानती लिखा है आला हजरत ने लानती लिखा है लानती लानती। इसकी इबारत आगे पढ़ आगे पढ़ आगे पढ़ इबारत आगे पढ़ इबारत आगे पढ़ इबारत आगे पढ़। अगर हरामी होगा तो नहीं पढ़ेगा हरामी होगा तो नहीं पढ़ेगा। आगे इबारत पढ़ आगे इबारत पढ़। इसी इबारत में आला हजरत ने फरमाया कि अगर उसकी तकफीर अगर उसका कुफ्र आफताब की रोशनी के बराबर मिल जाए तो उसकी तकफीर की जाएगी। साले जाहिल झूठ बोलता है। उसका कुफ्र हाँ उसका कुफ्र अगर आफताब की रोशनी के बराबर मिल जाए। अभी भेजता हूँ अभी भेजता हूँ तमीद ईमान का स्कैन भेजता हूँ अभी भेजता हूँ तमीद ईमान का भी भेजता हूँ। साला झूठा मक्कार कहेगा हाँ हदाय के बश के लिए वो वहाबिया ने दिया लकब जिसे वहाबिया ने दिया लकब शहीद का वो शहीद लैला नजद था वो बागे तैगे खयार है। आला हजरत तकफीर कर रहे हैं कह रहा है तकफीर नहीं की जाहिल का बच्चा। कल इसने मुझे शेर सुनाया। चलो जमशेद भाई काटो उसका फोन हरामखोर का लगा उसको खबीज को। ये कभी कभी बैठेगा नहीं सामने मर्दू शैतान। देखिए सामीन इकराम ये है आरिफुल हगवानी। ये खबीज जब से हमारे इफ्तिखार रजा साहब क़िबला ने इसके मुफ्ती को चैलेंज किया है तब से ये हवारिस खवारिज अपने आप को आलिम बना बना के ला रहे हैं कि मैं आलिम हूँ मुझसे मुनाजरा करो। और ये खबीज का बच्चा आलिम तो छोड़ो जाहिल कहलाने के भी लायक नहीं। जाहिल से भी बदतर है ये इंसान। ठीक है कसम नहीं खा रहा है। देखिए हमसे कसम खिलवा रहा है कि तुम कसम खाओ तहरीर शाह को। जब मैंने कसम खा लिया तो खुद कसम नहीं खा रहा। इसको मालूम है ये जो हवारिस खवारिज है ना ये देवबंद में झाड़ू लगाते हैं। ठीक है इसके मुफ्ती झाड़ू लगाने के लिए ऐसे लोगों को रखते हैं। जब मुफ्ती की फटती है तो इनको याद करते हैं कि जाओ तुम मैदान में जाओ हम तुम्हारी बहन और तुम्हारी अम्मी के पास रहेंगे तुम जाके लड़ो। ठीक है तो ये इनका हाल है। तो अब ये देख लें आप कि ये नाजायज बाप की नाजायज औलाद इसके मुफ्ती को चैलेंज किया गया। असगर की तरह ही कर रहा है ये। वही तो कह रहा हूँ इनके मुफ्ती को चैलेंज करो आती हमारी खवारिज। अच्छा इसने हजरत सुनिए कसम खा के इसने मुझे और तुफैल शमसी साहब को मुंबई बुलाया था वहाँ लखनऊ। वो रिकॉर्डिंग डली हुई है जरी खंजर पे। इसका रसादी फसादी शराबी जो जीनाकारी में पकड़ा गया था मदरसे में जीना कर रहा था एक लड़की के साथ पकड़ा गया था ये इसका आलिम रसादी और शराब खोर एक नंबर का अय्याश था। वो उसने बुलाया था चैलेंज किया था मुनाजरे का। तो जब हम लखनऊ पहुंचे तो ये खबीसों ने फोन अपने ऑफ कर दिए दोनों ने। ठीक है
اللہ بات ہی نہیں کی، اور یہ خبیث کے بچے بھاگے وہاں سے. پھر ہم لوگ 2 دن رک کر کے دلی واپس آئے، پھر دوبارہ گئے، پھر بھی یہ لوگ بھاگے. جی تو یہ ان کی اوقات ہے. اس کا رساری تو بالکل غائب ہی ہو گیا سوشل میڈیا سے، جب سے اس کے اوپر بلاತ್ಕಾರ کا آروپ لگا ہے تب سے غائب ہو گیا وہ. ٹھیک ہے، دبئی میں ہے. اچھا دبئی میں ہے، کہیں دبئی بھگا دیا اس کو، یہاں سے انڈیا سے نکال کے بھگا دیا دبئی. بگوڑے کو پھنس گیا تھا یہاں پہ، چوری چھپے بھاگ گیا یہاں سے. ٹھیک ہے، اب یہ حوارث خوارج آئے مناظرہ کرنے، ان کے مفتی سالے بیٹھے ہیں آرام سے، یہ مناظرہ کریں گے. تو اس ریکارڈنگ کو ڈال دیتا ہوں، اس کے ساتھ اپنی وائس دے دیجیے حضرت. ٹھیک ہے.